Okay, guys, so today is 22nd of April. Okay, let's do a video on market outlook for tomorrow. This is our profit for this month. So, since last expiry until 9th, I traded with 2 lakh capital. We made 1.14 lakh profit. After that, I reduced my capital from 2 lakh to 1 lakh to reduce the risk, and then we have made 26,760 rupees. So total we have made on around 1.1 plus 26, that is 1 lakh 37,000 around profit. But let's remember today we lost around 24,000, so almost 1 lakh 13,000 is our profit for the month. Okay, so that's it. That is the profit for us for this month until now. Okay, almost 1 lakh 13,000. And okay, so that being said, I also would guys like to talk about our channel. So we have reached 1K subscribers in just less than 1 month, and really thanks to all of you for making this whole thing very successful and for liking the video, sharing it with your friends, and we are growing day by day. So really thanks a lot for to all of you for your support and love. Now let's talk about today. So like I told you guys, today we made a loss. So what went wrong? Let's first discuss what went wrong, why we made loss. Because every time we make loss, we should analyze our mistakes. We should learn from them so that we don't repeat that in future. Okay. So if we see, let's see what are the trades we took. Mostly we have traded in Bank Nifty and a little bit in Nifty. Okay. You can also see that we made some profit here, but we also have lost a lot. Okay, and you also would be noticing lot of trades have been taken today. So now let's focus on what has been done wrong. Okay, let's discuss that first, then we will talk about what was right. Okay. Okay. So plain and simple, if you want my answer in one line. Okay, okay, what was the wrong that we did today is that we did not follow the basics. Okay, what do I mean by that? I mean by that we were very biased. Okay. See, what is the first basic thing that we see in market? A market in which we see a higher top, higher bottom formation. Okay. A market in which see a higher top, higher bottom formation is always in an uptrending market. A market in which we see a lower bottom, lower top formation, that is a downtrending market. Right? What happened? What mistake we did? Here we saw a higher top, higher bottom. Here that higher top, higher bottom got confirmed. But still our bias was so strong. हम लोग मतलब नहीं भाई, आज तो शॉर्ट ही करना है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा. सो सबसे जो बड़ी गलती आज की यही थी कि हम लोग पूरे टाइम, आज सुबह से शाम तक आप लाइव ट्रेडिंग देखोगे तो मैं हमेशा वो ये बोलता रहा, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा. क्यों भाई? सो ये आज एक गलती हुई है हमसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा मान के बैठे थे कि नहीं मार्केट गिरेगा. और उस केस में क्या हुआ कि हमें जो स्क्रीन पे दिख रहा था हमने वो नहीं देखा. क्या नहीं देखा हमने? कि एक क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, एंड वी इग्नोर दैट. वी केप्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा. इंस्टेड जैसे ही ये हायर टॉप हायर बॉटम पहली बार कंफर्म हुआ था, यहाँ पे लॉन्ग जाना था और हमें ये पूरा मूव कैप्चर करने मिलता. एक ट्रेड लेते और ये इतना पैसा बनता. बट सबसे बड़ी मिस्टेक आज की इसीलिए मैं बोलूँगा यही रही कि ये जो होता है ना, ये जो अभी जैसे हम लोग मार्केट आउटलुक कल का डिसाइड करें, ये बायस नहीं होना चाहिए. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बट कि मैं बायस ना हूँ, मैं ये ना सोचूं, पहले ही मान के ना जाऊँ कि हाँ मुझे आज ये करना है. बट आज कहीं ना कहीं मैं बायस था और ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं पूरे दिन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा जबकि मार्केट क्लियर कट ट्रेंडिंग अपवर्ड्स था. मतलब आंख बंद करके भी कोई इंसान बता सकता है ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है, क्लियर कट 20 डीए में भी अपवर्ड्स है. सो दैट वाज द मिस्टेक आई डिड टुडे एंड वी गॉट पनिश फॉर इट. वी मेड अ लॉस ऑफ 24,000. सो ये आज की मिस्टेक है. ठीक है, क्योंकि देखो गाइस, देखो बहुत लोग बताते नहीं हैं कभी भी क्या गलती करी, लेकिन गलतियां सबसे इंपॉर्टेंट है. और देखो मैं रोज़ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम एबल टू डू दैट बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ फर्स्ट. Forget about with others. I have to be honest with myself to make money. Okay, and being honest means I should be able to accept my mistakes, and that mistake I am accepting. Okay, the mistake was this. This was the mistake.
हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था, स्टिल वी केप्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू शॉर्ट. वी इन फैक्ट वी डिड नॉट इवन कवर आवर शॉर्ट पोजिशंस हियर. ठीक है, एंड वी केप्ट increasing our stop losses. That was a very wrong thing to do, which I did today, and really sorry guys to some of you, okay, who have also booked loss with me. So I'm sorry for the mistake that we did today. Will not repeat it again. Okay. ओके, सो कीप दैट इन माइंड एंड करेक्ट मी. अगर लाइव ट्रेडिंग में अगर आपको भी दिखे अगर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ मिस्टेक, डू करेक्ट मी, बोलना कि सर आप ये क्या कर रहे हो वापस. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग. ठीक है गाइस, तो चलो ये हो गया हमारा क्लियर कट क्या गलती हुई थी आज की. ठीक है, ओके, अब चलो बात करते हैं कल की. ओके, कि कल क्या हो सकता है. ठीक है, तो पहले कल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलो निफ्टी का चार्ट खोलते हैं. कहाँ गया निफ्टी? निफ्टी निफ्टी ये रहा. ओके, निफ्टी का चार्ट खोला जाए और निफ्टी का ये देखो 4 आवर चार्ट खुला हुआ है. सही चीज़ है भाई ये. रिमूव ड्राइंग्स, पूरा चार्ट हम एनालाइज करते हैं. देखो पहले एक काम करते हैं, एक डेली चार्ट खोलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि लॉन्गर टर्म में क्या बन रहा है, एंड उसके बाद हम आएंगे डेली चार्ट के बाद से 4 आवर का, 1 आवर का देखेंगे, फिर 5 मिनट चार्ट देखेंगे. ओके, अब देखो निफ्टी में अगर हम देखें तो ये जब ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, ये एक जो बड़ा मूव मिला था, उसके बाद से ये एक्चुअली कंसोलिडेशन चल रहा है. ये अगर हम देखें तो ये क्लियर कट ये कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में, राइट. कुछ और नहीं हो रहा है, निफ्टी कहीं जा नहीं रही है, एक्चुअली क्लियर कट कंसोलिडेशन है. ठीक है, ये एक तरह से एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रही है निफ्टी. दो बार बार लोअर लो बन रहा है, बट ये एक ट्रेंड लाइन पे फॉलो करा जा रहा है. ठीक है, ये कंसोलिडेशन है, ये यहाँ से ब्रेकआउट मूव हुआ था, फिर कंसोलिडेशन चल रहा है. ऊपर में क्या हो रहा है, सेम कहानी है. देखो ऊपर वाले साइड में भी सेम कहानी हो रही है. अगर ये देखो तो ऊपर भी ये एक तरह से हमारा ना ये ट्रेंड लाइन बनाओ. ओके, सो निफ्टी ये इस रेंज में है. ओके, इस रेंज में है मोटा मोटी. ओके, सो मतलब अब अभी देखो अभी भी मतलब इसका सीन क्या हुआ कि एट मैक्स हम जा सकते हैं इस लाइन के ऊपर. जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता हमें एक ट्रेंडिंग मूव अपवर्ड नहीं दिखेगा. ठीक है, सो ये एक चीज़ क्या इस्टेब्लिश कर ली हमने कि कंसोलिडेशन जोन में है. अब और क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें, और क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं क्लियर कट. देखो और क्या दिख रहा है. देखो ये लेवल था, ठीक है, जहाँ के बाद से ब्रेकआउट हुआ था, ये गैप फॉर्म हुआ था, राइट. ये देखो गाइस, ये गैप फॉर्म हुआ था. इसको बना के दिखाएं कैसे. देखो ये गैप फॉर्म हुआ था. ठीक है, ये गैप फॉर्म हुआ था. अब ये गैप्स मार्केट डजेंट लाइक गैप्स. मतलब मार्केट को गैप अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी गैप होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी बायर या सेलर नहीं रहा होगा, तो मार्केट ऑलवेज ट्राइज टू फिल दैट. ओके, अब ये देखो पहली बार जब गिरा, ठीक है, गैप फिल नहीं हुआ, ऊपर गए, यहाँ पे हिट किया हमने इस ट्रेंड लाइन को, वापस गिरे, यहाँ तक आए, गैप फिल ऑलमोस्ट हो गया, फिर ऊपर गए, फिर गिरे, अब तो गैप फिल हो ही गया है. ओके, फिर ये सीन हुए. अब दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है कि अगर अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं कि ये जो रीज़न है, ये देखो यहाँ पे बार बार निफ्टी इस एरिया में आके ऊपर गई है. इस रीज़न को बनाते हैं ये हमारा, ठीक है, ये इतना, ये थोड़ा चौड़ा है, ठीक है, बट ये देखो पिछले ये अराउंड कह सकते हो 19 मार्च से, और आज हो गया 22, एक महीने से, ये एक महीने से निफ्टी ने इस एरिया को 14,300 से लेके 14,150, 14,150 to 14,300, this zone has provided many times buying to Nifty. Okay, so this zone has acted as a demand zone. Okay, so every time prices have reached near this level, we have seen that buyers have started coming and they have pushed prices up. यहाँ पे गिरा, यहाँ पे buyers came in, they pushed prices up. Then again we came here, again it pushed prices up. Again we came here, okay, again the price was pushed up. So this zone has acted as a demand zone for almost a month. Okay, so that is one important takeaway. Now if we have to fall, we have to
close, see, none of the days we have seen a closing on daily candlestick in below this demand zone. We have always seen some buying emerge here, here, here. We haven't seen a candle, something like, say, something a candle like this, okay, or a candle like this with a very small tail. All of these have significant buying we could see on the lower levels, okay, and that's why we see ठीक है ये ऊपर जा रहा है. तो अब क्या हुआ कि अब एक दो चीज़ें हुई. अगर वापस हम इसको इस जोन में आते देखते हैं तो वी कैन कन्विंसिंगली बाई with a stop loss below this zone for a higher level. Currently Nifty is showing कि it can go up again and यहाँ से it can again go up from here and यहाँ से ऊपर आई है, it can go up till here and then again if it doesn't break this trend line then we may have a shorting opportunity again for here if it breaks. Okay, ठीक है. सो या तो ये हो सकता है, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर गई निफ्टी और इसके ऊपर निकल गई. इन दैट केस क्या हो सकता है कि ब्रेकआउट ट्रेड हमें मिल सकता है. ठीक है. सो ये दो सिचुएशन है, ये लॉन्गर टर्म है. ठीक है, ये लॉन्गर टर्म सिचुएशन है, लॉन्गर टर्म एनालिसिस इसको मान लो. ओके, अब चलो ये इसको बंद करते हैं. इसको आई होप ये समझ गया होगा आपको क्या मैं बोलना चाहता हूँ. ठीक है, वी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ टू गो बिलो दिस बिकॉज दिस इज एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ, बट सिंस दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, एनी ब्रेक बिलो दिस लेवल विल मीन levels until this. अगर ये ब्रेक होता है then we can easily see निफ्टी coming to 13,600. ओके, ठीक है. चलो अब इसको रिमूव करते हैं. अब थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं. ठीक है, अब आर्ली चार्ट देखते हैं. देखते हैं कि आर्ली चार्ट में क्या हमें कुछ और नया एक्स्ट्रा दिख रहा है. ठीक है, तो हमें एक मोटा मोटी व्यू मिल गया कि निफ्टी चलो रेंज बाउंड है, ऊपर नीचे एक ट्रेंड लाइन है जिसके बीच में निफ्टी रिवॉल्व कर रही है. हमारा 14,150 से 14,300 के बीच में एक जोन है जो डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है. बार बार निफ्टी जब इस जोन में आती है तो प्राइसेस गो हायर. ओके, आई एम अगेन मेकिंग दैट जोन. दिस इज द जोन क्लियरली. ठीक है, this is the zone in which nifty whenever it comes it gets buying. Okay, and we see immense buying, and every time we have seen nifty come in this zone we have seen significant up move. But we also should note all these significant up move we have, यहाँ से जब up move हुआ it was not able to cross previous high, right? जो भी up move हुआ पहले गया हाई तक गया, गिरा. ठीक है, उसके बाद ऊपर गया. भले यहाँ से भी जब अप मूव हुआ तो ये हाई था, इसके ऊपर नहीं गया. फिर यहाँ से अप मूव हुआ, इसके ऊपर नहीं गया. अब फिर यहाँ से अप मूव हुआ है. तो अब देखो अब क्या सीन है. अब या तो हर बार जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, इस बार भी या तो वही सीन होना चाहिए, है ना. एक पहले तो ट्रेंड लाइन बना देते हैं. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ मोस्टली होना क्या चाहिए कि ये जो यहाँ से फॉल हुआ था या तो फिर यहाँ पे आए वापस ये फिर नीचे आने लगे. ठीक है, तो या तो अब हमें क्या क्या हो सकता है, यहाँ से ये वापस हो सकता है ट्रेंड लाइन तक आए, फिर ये नीचे ऐसे ही आए ऐसे ही आए अनटिल कि ये ब्रेकआउट दे दे. या ठीक है, या तो ये ब्रेकआउट दे देगा ऐसे करते करते, या हो सकता है ये सेम चीज़ यहाँ भी फॉर्म हो जाए, और या तो यहाँ से नीचे आए और ब्रेक डाउन दे दे. देखो दोनों में से एक तो होना ही है ना. कब तक रेंज में रहेगा, है ना. बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी. ठीक है, सो ये दो में से एक सिनेरियो अब निफ्टी में बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अब जब ऊपर गया है तो या तो यहाँ से ऊपर चला जाए तो ब्रेकआउट मिल जाए, और या तो यहाँ से नीचे आए और फिर नीचे ब्रेक डाउन दे दे. ठीक है, तो ये दो चीज़ें बन रही हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे ये वापस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मिट गया था. हाँ हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ पे कल से मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे बाइंग करते हो अगर आप, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बाइंग साइड में बहुत कम है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड सिर्फ इतना है जबकि स्टॉप लॉस इतना लंबा है. तो मतलब ओपन होते ही आप बाई नहीं करोगे. ठीक है, हमारा अब डिसीजन मेकिंग पॉइंट ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं होगा. ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ट्रेंड लाइन से रिवर्स होता है तो ब्रेक डाउन फिर वापस. ठीक है,
सो हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ स्टैब्लिश क्या करी कि अभी रिस्क रिवॉर्ड बाइंग साइड में नहीं है, बट अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे आज के दिन भी हम सोच के बैठे थे कि नहीं शॉर्ट लेना शॉर्ट लेना शॉर्ट लेना, नहीं वो नहीं करना है। कल मार्केट जब खुलेगा मार्केट को मार्केट की नज़रिए से देखेंगे और आज की एनालिसिस को जस्ट एज ए गाइड इस्तेमाल करना है, उसको ऐसे नहीं इस्तेमाल। एक मिनट गाइस, एक मिनट हो। हेलो हेलो, या हेलो गाइस, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। हाँ टेल मी, आप पहुँच गए हो क्या? ओके, आप नीचे वेट करो, वो अभी आ रहे हैं। ओके, भेजता हूँ मैं किसी को। ओके ओके guys, just hold for a minute. I have to, my brother's birthday is there. I have to just make a call to him. Really sorry for this. Hmm, हाँ राहुल। Yes, guys. So sorry, really sorry for this. I had a call. My brother's birthday is today, and I actually forgot to wish him yesterday. So I'm making up for it. ओके, कल रात में मैंने विश नहीं किया था उसे, याद ही नहीं आया मुझे। हाँ, तो अब मैं देखो क्या करते हैं, बाइंग साइड में हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, सो मोस्टली वी विल वेट कल ओपन होने के बाद एंड ट्राई करेंगे कि समवेयर टू शॉर्ट। बट फिर जैसे आज की तरह वो सेम गलती नहीं दोहरानी। अगर मार्केट में दिख रहा है इन सब के बावजूद, अगर मार्केट दिख रहा है हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बनाते हो, प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा तो वी विल बाय, चुपचाप आंख बंद करके। ठीक है, सो ये सीन बन रहा है निफ्टी में। अब देखो थोड़ा 5 मिनट चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियर कट और हो जाए। ओके, तो अब सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखो गाइज, कल मार्केट जब ओपन होगा तो ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। ये देखो मैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बना रहा हूँ, और ये तो नीचे ये ग्रीन वाला बना इसको ग्रीन कर देते क्योंकि ये सपोर्ट रहेगा, और ये रेड। सो ये कल मार्केट जब ओपन होगा दिस विल एक्ट एज प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और ये प्रीवियस डे लो हो जाएगा, राइट। बीच में सीपीआर उपीआर होएगा, वो अब कल जब मार्केट खुलेगा देखेंगे। अब देखो कंसिडर करते हैं सारे सिचुएशन जस्ट लाइक एवरी डे वी डू। अब से प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलता है, से यहाँ कहीं खुलता है। ओके, अब ये क्या है, ट्रेंड लाइन के पास है। ठीक है, तो हम अब दो चीज़ें होंगी यहाँ से खुलने के बाद, या तो वो ऊपर जाएगा, राइट, और या तो वो नीचे जाएगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ये प्रीवियस जो पहली बार उसके पहले वाला फॉल हुआ था जो मैंने अभी समझाया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। पहले वाला फॉल वाला पॉइंट ही है। अब अगर इसके ऊपर जाता है, से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो तुरंत नहीं खरीदना है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक भी करता है तो ये देखना है क्या हम इसके, ये जो लाइन है ना जहाँ से ये गिरा था, ये पूरा डाउन मूव स्टार्ट हुआ था, क्या हम उसके ऊपर जा पाते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है, रिट्रेस करके नीचे आता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो विल प्लान टू बाई। बट, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं, बट से मार्केट यहाँ खुला, यहाँ तक गया, ठीक है, और यहाँ से रिवर्सल देने लगता है, तो उस केस में, और लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बन रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अगर ऊपर खुला और ऊपर जा रहा है तो क्या सिनेरियो है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि ऊपर खुला लेकिन नीचे आना शुरू हुआ। ठीक है, तो से यहाँ पे खुला और नीचे आना शुरू हुआ, तो ये प्रीवियस डे हाई जो है वो एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट, राइट। सो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या इसको हम भेद के नीचे जा रहे हैं या यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है
ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो, और अगर रिस्क रिवॉर्ड परमिट कर रहा है तो इन दैट केस एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट हमारा, हम क्या रखेंगे, इस ये जो प्रीवियस हाई था, जहाँ से स्विंग हाई था, जहाँ से ये गिरा था, उसके जस्ट नीचे हमारा टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड, हर बार जब हमने देखा निफ्टी में कि जहाँ से फॉल होती है वहाँ तक वापस प्राइस नहीं जा पाता। जैसे देखो यहाँ से फॉल हुई थी, वहाँ प्राइस नहीं जा पाया, अब यहाँ से गिरा तो पॉसिबल है ऊपर ना जाए, राइट। दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है कि यहाँ से गिरा और इसके नीचे चला गया, तो फिर तुरंत शॉर्ट नहीं करो, वेट करो, वापस देखो रिट्रेस करके हाई के पास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा, एंड उस केस में फिर वहाँ पे हम शॉर्टिंग ले लेंगे और ये देखते रहेंगे हर समय कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। फिर हमारा सीपीआर होगा, जो भी जैसा भी होगा, सीपीआर है पहले या ये है, तो उस हिसाब से हम टारगेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया गैप अप के केस में सारे सिनेरियोज, ऊपर जाता है तो क्या करना है, नीचे जाता है तो क्या करना है, ठीक है। ये दो सिनेरियोज हो गए हमारे गैप अप के केस में, ठीक है, अगर गैप अप प्रीवियस डे हाई के ऊपर होता। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है कि इनसाइड डे हो, इतने बड़े बड़े मूव्स के बाद बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज में खुले, से यहाँ पे खुल गया, ठीक है, और ऊपर जा रहे हैं तो सेम सेम कहानी, अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वेट करो, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लेना है हमेशा। देखो बाउंड्रीज पे, क्योंकि रेंजिंग मार्केट है ना, मार्केट कोई ट्रेंड तो दिखा नहीं रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है ऑन ए हायर टाइम फ्रेम, तो मतलब क्या है, बेस्ट ट्रेड सारा अवेलेबल वेयर एट द बाउंड्रीज। सो वेट करो, बाउंड्री पे आने दो, बाउंड्री पे आके ब्रेकआउट देता है ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे, बाउंड्री पे आके रिवर्सल देता है तो रिवर्सल वाला ट्रेड लेंगे, राइट। सिमिलरली अगर गैप अप होता है, ये बीच में यहाँ पे खुलता है, गैप डाउन से होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नीचे जाने शुरू होता है तो तुरंत शॉर्ट नहीं। अगर हाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम मिला, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, तो वी कैन टेक शॉर्ट ऑल्सो, ठीक है, बट मोस्टली वी शुड ट्राई एंड वेट कि यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर रिवर्सल मिलता है, जो कि मिलना चाहिए क्योंकि रेंजिंग मार्केट है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करो, ठीक है, ऊपर के लिए, ठीक है। सो सिमिलरली सो ये दो केस हो गए हमारे, अगर बीच में खुलता है तो क्या करना है, बीच में खुलता है ऊपर जाता है तो क्या करना है, नीचे जाता क्या, और इन एनी केस अगर बीच में खुलता है और ये रेंज ब्रेकआउट मिलता है, अगर इसके ऊपर मिलता है या इसके नीचे मिलता है, देन इन दैट केस विल इनिशिएट द ब्रेकआउट ट्रेड्स। अब एक और चीज़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन वालों लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है कहीं भी, तो हमें पता है रेंजिंग मार्केट है, एक रेंज में है, तो हम ऑप्शन नहीं खरीदेंगे। इन दैट केस वी ट्राई टू टेक ट्रेड्स यूजिंग फ्यूचर्स। ऑप्शन बाइंग तभी करते हैं जब एक ट्रेंड होता है, और वो कब करेंगे, अगर हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है या इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, दैट इज द ओनली सिचुएशन इन विच ऑप्शंस विल बी बेनिफिशियल एंड देन वी विल टेक दोज ट्रेड्स। ओके, सो दैट इज द व्यू गाइज ऑन निफ्टी। ओके, अब चलो क्विकली बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ही इसी पेस में जल्दी से, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में वही पहले डेली चार्ट खोलते हैं, देखते हैं क्या कहानी बन रही है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बैंक निफ्टी क्यों इंटरेस्टिंग है, मैं ये पहले ये समझाता हूँ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ना, अगर मैं इलियट वेव शुरू करूँ, तो ये मेरे को वेव 1 दिखता है, जिसका ये करेक्टिव वेव है, और ये वेव 2 दिखता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा हाइकनाशी लगा देते हैं, क्लियर कट दिखता है हाइकनाशी में। देखो ये हमारा वेव 1 है, करेक्टिव वेव 2 है, ये पूरा हमारा वेव 3 था, ये 4 था, ये 5th वेव चल रहा है। अब देखो या तो 5th वेव यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है, अगर ये 5th वेव था मतलब ये 1 2 3 4 और ये 5 5th वेव ट्रंकेटेड वेव है। अब इलिट वेव आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब भी ट्रंकेशन होता है, और ये मैंने एक और वीडियो में समझाया, कल परसों वाली वीडियो में, आई गेस ट्यूसडे नाइट को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें समझाया, ठीक है। अगर ट्रंकेशन होता है, इन केस में रिवर्स डायरेक्शन में मूव बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि ट्रंकेशन का मतलब ये है कि ये जो 5th वेव थी, जो कि इसके नीचे जानी चाहिए थी, वो जा ही नहीं पाई क्योंकि इतना बाइंग प्रेशर है। सो अगर इतना बाइंग प्रेशर है, मतलब अब रिवर्स डायरेक्शन में जो मूव आएगा ना, वो काफ़ी बड़ा मूव हो सकता है, एंड दैट कैन गो इवन above this level. Okay, so that is the message that Elliott wave is giving if there is a truncation. Okay, but
द ट्रंकेशन इज नॉट येट कन्फर्म्ड। ओके, अब देखो दूसरी चीज़, अब क्या कर देखना है हमें। अरे यार तुम इधर आओ। दूसरी चीज़ अब हमें क्या देखना है, इसको हटाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि एक और चीज़ क्या इलियट वेव में होती है कि ये जैसे वेव, मगर हम जैसे हम बना दिए थर्ड वेव हुई थी और हम बोल रहे थे कि यहाँ से वेव 1 शुरू हुआ, 2 शुरू हुआ, 3 शुरू हुआ, हम बोल रहे थे ये ट्रंकेशन है, क्योंकि हम बोल रहे थे फोर्थ ये हुआ, लेकिन हो सकता है ना कि फोर्थ ये नहीं हो सकता है फोर्थ यहाँ कहीं हो और फिफ्थ अभी शुरू ही नहीं हुई हो। क्यों? क्योंकि ये जो बना है पूरा, इसको बोलते हैं फ्लैट फॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि एक करेक्टिव वेव पैटर्न होता है। हम बोल सकते हैं कि ये ए बी और ये एक्चुअली सी बन रहा है, और सी कैन एक्चुअली गो अप ऑल्सो, सी कैन ऑल्सो स्टॉप हियर। ओके, अब एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज से इलियट वेव में मल्टीपल चीज़ें बन सकती हैं। ओके, यू ऑलवेज हैव टू रिजेक्ट सर्टेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वाली थेरी सही बैठ रही है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एनीवे, लेट्स फॉरगेट इलियट वेव, लेट्स फोकस ऑन प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने क्या देखना है वो उस पर ध्यान देते हैं। इलियट वेव बाद में कभी मैं वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ सबको फिर, ठीक है। प्राइस एक्शन देखते हैं गाइस। तो प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है? अरे यार तुम कहाँ से आ जाते हो, कुछ भी दब जाता है भाई। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, ये जो जोन है क्या है, ये 30,400 से 30,700। सेम जैसे निफ्टी में हमने देखा था, यहाँ पे एक बैंड है जहाँ पे बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी आ रहा है लेकिन डिमांड मिल रहा है और बार बार प्राइस हो, मतलब कोई तो है जो इसको चाहता नहीं इससे नीचे गिरने दें मत। और कैंडल्स भी बहुत बड़ी बन रही, देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ से ऊपर ले जाने में, इसके बाद ऊपर मूव नहीं मिल रहा है। मतलब कोई तो है, या तो लोग यहाँ पे जिसके नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, और दीज आर क्वाइट स्ट्रांग पीपल क्योंकि द मूव्स आर वेरी बिग। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको टेस्ट करते हैं और अगर हम इसके नीचे आते हैं, देन इट्स वेरी पॉसिबल दैट वी सी ए वेरी बिग डाउन मूव। ओके, सिमिलरली लाइक निफ्टी में हमने देखा था, बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। ओके, बैंक निफ्टी में अगर हम देखो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक ये एक और ड्रॉ किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो दो ये ट्रेंड लाइन है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो कल सीधे सीधे गिरना शुरू हो जाना चाहिए था, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट हमने एक और चीज़ जैसे नोटिस करनी है कि वही सेम जैसे निफ्टी में था, जब भी ये फॉल हो रहा है, जैसे ये फॉल हुआ तो नेक्स्ट हाई जो है वो प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाता। ये फिर से जब फॉल हुआ, अब ये जो नेक्स्ट हाई बन रहा है शुड नॉट क्रॉस दिस, यही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, वही लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला स्ट्रक्चर। तो पॉसिबल है कि कल बैंक निफ्टी में वापस शॉर्टिंग मिले, अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने का ही हो ज़्यादा। बट वही लाइक मैंने अभी तक बोला, दिमाग में रख के नहीं जाएंगे मार्केट में, मार्केट खुलेगा तब देखेंगे। ओके, अब ये देखो ये एक ओवरऑल काइंड ऑफ व्यू हो गया। अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेडिंग करनी है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सेम जैसे निफ्टी में हमने देखा वैसे। ओके, सो अब देखो, सो बैंक निफ्टी में हम गिरे कहाँ से थे, यहाँ से गिरे थे, है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, दिस वाज द पॉइंट जहाँ से हम गिरे थे। क्या है ये, 31,925। अब देखो 32,000 क्या है, मंथली एक्सपायरी, अब ये लास्ट एक्सपायरी है कल से, तो मंथली एक्सपायरी है। अब अगर पूरे मंथ में इसके ऊपर नहीं जा पाए, मतलब कि 32,000 पे काफ़ी सारा कॉल राइटिंग हुआ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम ऊपर कल, अब क्या होगा कल अगर यहाँ पर खुलता है तो बहुत चांसेस है कि हम ऊपर जाएं और ये 32,000 से 32,000 32,100, ठीक है, टेस्ट करके मैक्स यहाँ तक, ये जो है ना 32,200, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर देखो ये प्रीवियस स्विंग हाई हो गया, देखो ये प्रीवियस स्विंग हाई बना देते, ये वो लेवल था जहाँ से, जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि बैंक निफ्टी हर बार नीचे जब ऊपर आता है तो उसके प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा पाता है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग
कि कल, या तो अब देखो कल के हिसाब से पहले तो वो भी बना लेते हैं, डे हाई डे लो। अब कल के लिए पर्पल कर देते हैं भाई दोनों, ताकि लोगों को अलग सा दिखे वो। दो लाइनें ऑलरेडी रेड ग्रीन है। अभी तो कल के लिए ये दोनों पर्पल लाइन क्या हो गया, डे हाई और डे लो हो गया। अब अगर कल मार्केट ओपन होता है गैप अप इसके ऊपर, और हमें 32,000 के ऊपर जाता दिखाई देता है, और हमें एक से 32,000 के ऊपर जाता दिखाई देता हुआ, और हमें एक हायर टॉप हायर बॉटम मिलता है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, इन दैट केस वी कैन गो लॉन्ग, बट ओनली फॉर ए टारगेट अप टू 32,300 के आसपास। ठीक है, बट वो एक ट्रेड ऐसा है जिसको मैं मोस्टली अवॉइड करूँगा। ठीक है, आई विल मोस्टली ट्राई, क्योंकि मंथली एक्सपायरी, आई विल मोस्टली ट्राई टू शॉर्ट। ओके, दैट विल बी माई पोजिशनिंग। बट हाँ भाई, आज वाली गलती नहीं करना है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज वाली गलती रिपीट नहीं करनी है कि दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगे हैं। ठीक है, वो गलती नहीं करनी है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले। ठीक है, अब गैप अप खुलता है, से 32,000 के ऊपर खुलता है, वेट करो, देखो 32,000 के पास आके क्या सपोर्ट ले रहा है या सब नीचे पेनिट्रेट कर जा रहा है। अगर पेनिट्रेट करता है फिर ये देखना है कि क्या प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रहा है। अगर प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट लिया तो फिर से प्रीवियस डे हाई के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस डाल के एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दो फॉर दिस टारगेट। ठीक है, बट अगर खुलता है ऊपर, इसको भी तोड़ देता है और इसके भी नीचे चला जाता है, तो उस केस में फिर वेट करो रिट्रेसमेंट का, और वापस अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलता है तो इन दैट केस शॉर्टिंग। ठीक है, एंड दिस ट्रेड माइट एक्चुअली बी समथिंग जो कल हो सकती है। सिमिलरली अगर से गैप डाउन होता है तो क्या होगा, इनसाइड डे होगा, तो उस केस में देखो गैप डाउन होता है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वेट करो, यहाँ तक जाने का या 32,000 तक जाने का वेट करो फॉर यू टू बी एबल टू शॉर्ट। ओके, एंड ऑलवेज सी कि लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर बने। ठीक है, सिमिलरली अगर गैप डाउन होता है और नीचे जाना शुरू कर देता है, डोंट शॉर्ट इमीडिएटली, फर्स्ट कंफर्म देयर इज अ लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एंड देन वी विल शॉर्ट। ओके गाइज, नाउ ये सब तो मैं कर ही बता ही रहा हूँ फॉर ऑल दोज पीपल जो लाइव ट्रेडिंग में साथ में नहीं रहते हैं उनके लिए। बाकी वो जनता जो मेरे साथ डेली लाइव ट्रेडिंग करती है वो तो वैसे भी मेरे साथ रहेगी, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच ट्रेड एनीवे। ठीक है गाइज, सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे। I hope you guys understood what I was trying to tell, what I was trying to explain. अब देखो कल देखते हैं क्या होता है, कैसा मार्केट रहता है। अगेन हमारा प्रॉफिट इस महीने का कितना रहा देख लेते हैं, 26,760 प्लस ये 26,760 हमने बनाया है कब से कब तक के बीच में, 12 तारीख से आज कल तक के बीच में। ठीक है, प्लस और ये 1 लाख में बनाया, 1 लाख फिर ये 25 से 9 के बीच में हमने बनाया 1,14,000। ठीक है, और आज हमने लॉस किया 24, तो मतलब 26 पहले तो ये कर लो, 26 माइनस 24 2,000 बचे, और ये 1,14 दो ऐड कर दो, 1,16,000 हमारा प्रॉफिट है 2 लाख के कैपिटल में अभी तक। ठीक है, अब लास्ट हफ्ता बचा है, कोशिश ये करनी है कि इस हफ्ते में जो 1,16,000 है उसका 16,000 से ज़्यादा नुकसान ना हो, कम से कम 1 लाख रुपये प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ रहे। तो यही कोशिश रहेगी। ठीक है, एंड लेट्स सी, सो विल हैव टू मैनेज आवर रिस्क प्रॉपरली गाइज, फोकस ऑन रिस्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Once again, thank you guys for subscribing to the channel, and in just 1 month we have reached 1K subscribers. I'm really humbled by all the support that I have got from each one of you. Okay, जितना engaging session रहा है, इवन हमारा जो ग्रुप है काफ़ी एक्टिव है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लोग अपने चार्ट वार्ट बना के डालते रहते हैं। इट्स अ गुड लर्निंग। पहले मैंने सोचा था चैनल लगाने का, बट फिर मैं सोचा चैनल में क्या हो जाता है, टेलीग्राम पे चैनल बनाओ तो फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, लोग आपस में बात नहीं कर पाते, फिर एक बंदा बस अपडेट ही देता रहता है। ग्रुप से क्या फ़ायदा हुआ, लोग आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे सवाल पूछ सकते हैं और एक दूसरे सीख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो, वो आइडिया था मेरा करने का, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आई हैव सीन दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। सो वंस अगेन गाइज, thank you for everything, for all the support. If you like the video, please press the like button. Also subscribe to the channel and press this bell icon. Once you press this bell icon, after subscribing you will receive all the notifications. ठीक है,
सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी लाइव जाऊँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो ये प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे आप सेलेक्ट कर लेना, दैट इज़ द वे टू डू। ठीक है गाइस, चलो फिर देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।